Hello students, I hope you have gone through yesterday's video and I'm expecting that you must have minutely watched. So as I have informed you yesterday that today we are going to start our fourth chapter in the book Flamingo, and that is Rat Trap. So let's begin without wasting time. Few students have written me that on my personal WhatsApp number also, or on the YouTube also, few students have written that they are just want to be a bit bilingual also. So keeping this in mind, I'll be having a bit Hindi also in between and English in the same way as we had yesterday. Clear, students? So let's begin. Students, rat trap. You must have heard this word before also, और मोस्ट ऑफ यू भी हैविंग एट योर होम ऑल्सो. चूहेदानी हम जिसे कहते हैं ना, जिसमें हम माउस ट्रैपर भी बोलते हैं, जो माउस को ट्रैप करने के लिए रखा जाता है. द स्टोरी इज ऑल अबाउट दैट. क्लियर? थोड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थोड़ा लेंदी है बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. मुझे बहुत पसंद है ये चैप्टर. सो लेट्स बिगिन विद दैट. सेल्मा लेगलॉफ इज द राइटर ऑफ द चैप्टर एंड बेसिकली द चैप्टर revolves around a theme or a basic philosophy, is that the entire world is a rat trap, that the entire world is compared with a rat trap. कि पूरा का पूरा जो world है वो किसकी तरह है? It's like a rat trap, and the mouse or the rats are like we people. We means human beings. Human beings are the mouse which are revolving around that rat trap or the world, and the bait. Bait is a very important word. Bait means the attractive piece of food which is kept in order to tempt the rats. लालच देने के लिए ना, उनको जो भी rats आसपास घूम रहे हैं उन rats को फंसाने के लिए, लालच के लिए एक piece of food रखा है वहाँ पे. वो जो piece of food है that is known to be bait. So we, all the human beings are attracted towards that bait. We used to try to touch for chew or for eat, and then what happened? The door of that rat trap suddenly shut behind us and we were caught in the rat trap, in the world like rat trap. So सारी की सारी stories philosophy पे ही run up करती है. Interesting story, a very interesting story it is. So attentively in today's session I'm telling you the story. Let's begin. There is a paddler. How the story starts? There is a paddler. Paddler, you can say a vagabond, जैसे एक जिसका कोई घर नहीं होता, a homeless fellow and who's not having any particular home to live in. तो वो घूमता ही रहता है इधर से उधर, उसको कोई particular घर नहीं होता रहने के लिए. So what he used to do, as usual, he used to keep on walking here and there. कोई family members नहीं है घर में, कोई नहीं है, he is all alone. And what is his main work is to make rat traps. And for making rat traps भी वो आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं जो उसको अवेलेबल हो जाती हैं, जैसे नियर बाय द फैक्ट्री, उसको जो भी रॉ मटेरियल चाहिए होता है रैट ट्रैप बनाने के लिए, वो वहाँ के वेस्ट से उठाता है, उनसे रैट ट्रैप बनाता है और उन रैट ट्रैप्स को अपने नेक में हैंग करते हुए चलता है. मतलब उसके चेस्ट पे बहुत सारे रैट ट्रैप्स डैंजलिंग करते हैं, मूव ऑन करते हैं. व्हेनेवर ही यूज्ड टू वॉक, सो रैट ट्रैप्स आर डैंजलिंग ऑन हिज चेस्ट एंड ही वाज लाइक हिज फर्स्ट जॉब इज टू सेल रैट ट्रैप. उसको रैट ट्रैप सेल करना होता है. दूसरा उसका जॉब है स्टीलिंग, क्योंकि हर कोई तो रेड ट्रैप नहीं खरीदता है ना, और उसके पैसों से उसका गुजारा भी नहीं होता है. तो दूसरा काम वो क्या करता है? चोरी करना. और जब चोरी करने का भी मौका नहीं मिलता है, समटाइम इट हैपन्स, लाइक पीपल आर वेरी एक्टिव नाउअडेज, नोबडी इज एबल टू स्टील एनीथिंग एल्स इजीली. सो देन लास्ट ऑप्शन इज बेगिंग ऑल्सो. Like when he found that he can't live without food, so he started begging. भीख मांगना भी शुरू करता है. तो these are the three things, like selling rat trap, and that is another is stealing. And when these two won't work, then he go with begging. Begging तो you know very well, it's a very easy task. और easy भी है, और like people are sympathize somewhere to somewhere. If the first will not be, the another one will be sympathize and people will surely give. So the chapter is all about paddler. Actually सारा का सारा चैप्टर उस पैडलर के अराउंड ही घूमता है. पैडलर मतलब पैदल चलने वाला, उसी के अराउंड घूमता है. अकेला होता है, उसकी फैमिली मेम्बर्स में कोई नहीं है, ही इज ऑल अलोन. एक दिन ऐसे ही चलते चलते
alone he's walking, and alone he is thinking something else. Something is going on in his mind and he's keep on thinking and keep on moving. So दिमाग में उसके कुछ ना कुछ चल रहा होता है और सडनली उसके दिमाग में एक दिन एक फिलॉसफी, वो जो फिलॉसफी जिससे स्टार्ट किया था मैंने, वो स्ट्रक करती है कि पूरा वर्ल्ड एक रैट ट्रैप है एंड हम ह्यूमन बींग्स एक रैट्स हैं और हमारे लिए बेच रखा जाता है, हम उसके लिए जाते हैं एंड वी आर कॉट इनसाइड फॉर एवर. तो ऐसे ही होता है एंड दैट इज़ वाई. और अपने को देख के बहुत खुश होता है दैट आई एम नॉट कॉट इन दिस रैट ट्रैप, क्योंकि बेट क्या है, फैमिली मेम्बर्स हैं, लग्जरीज है और लव, अफेक्शन, केयर, ये सब क्या है हमारे लिए, बेट ही तो है. हम लाइक मरना कौन पसंद करता है? हु कमिट सुसाइड व्हेन ही डोंट फाउंड इवन अ सिंगल रीजन टू लिव ऑन दिस अर्थ. और वो जो सारे रीजंस है जो हमें दूसरों के लिए जीना सिखाते हैं, वो सब हमारे लिए क्या है? वो बेट हैं. जैसे हम और रिवाइंड वर्ड्स में कह सकते हैं मोह माया. हम सब मोह माया में फंसे हुए हैं. बच्चे हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं और लाइफ है, घर है, परिवार है. हम नहीं चाहते हैं सबको छोड़ के जाना, तो हम फंसे हुए हैं यहाँ पे. ये सब हमारे लिए बेट की तरह काम करते हैं. वी कांट लीव देम, वी कांट मूव असाइड आफ्टर लीविंग ऑल दीज थिंग्स. सो दिस ऑल इज अ बेट फॉर अस. ये सब हमारे लिए बेट का काम करता है. तो क्योंकि पैडलर की लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है, ना उसकी फैमिली है, ना उसका घर है, ना कोई उसके बच्चे हैं, ना उसकी कोई वाइफ है, नथिंग ही इज हैविंग इन हिज लाइफ. तो ही कंसिडर हिमसेल्फ एज वेरी फॉर्चुनेट पर्सन दैट ही इज नॉट प्रोन easily to caught inside a rat trap because he has nothing in his life to be that. It's like that. Clear? So he was very happy with that philosophy. बहुत खुश होता है इस फिलोसफी से. चलते चलते रात हो जाती है, जंगल में पहुंच जाता है. वहाँ पे एक क्रॉफ्टर का कॉटेज मिलता है. क्रॉफ्टर हेयर स्टैंड्स फॉर स्मॉल फार्मर. उसका कॉटेज उसको मिलता है, उसको नॉक करता है. वो क्रॉफ्टर उसको वेलकम करता है बिकॉज ही वॉज ऑल अलोन. सो ही फाउंड अ कंपनी एट नाइट. They discussed a lot of things. They had dinner together. They discussed a lot of things. They play cards together. They chew tobacco together, and then they slept. Before sleeping, but the crofter उसको बता देता है कि I'm a milkman also. I have a cow, and I have a good selling of that milk of her, and 30 kroners actually. ये सारा स्टोरी क्रोनर्स के रिवॉल्व चलती है. तो 30 क्रोनर्स पे स्टोरी रिवॉल्व होती है और 30 क्रोनर्स पे बेस्ड ये स्टोरी है. और उसको बताता है वो रेड ट्रैप सेलर को बताता है कि देखिए लास्ट मंथ की मेरी जो इनकम है वो ये 30 क्रोनर्स है, जो मैंने ऐसे ही बगल वाले रूम में पाउच निकाल के लाता है. उसको दिखाता है कि देखियो ये मेरी लास्ट मंथ की कमाई है, बहुत अच्छी मेरी होती है कमाई. और मैं जब यंग था तो मैं रामजो आयरन मिल यहाँ पे नियर बाय है, वहाँ पे वर्क करता था. बट नाउ आई एम एन ओल्ड मैन, सो आई कांट हार्ड वर्क एज मच, लेबर वर्क नहीं कर सकता. सो नाउ आई वर्कड एज अ मिल्कमैन. आई एम वर्किंग एज अ मिल्कमैन. और ये मुझे इवन मिल्किंग करके भी बहुत अच्छी इनकम होती है. और ये एक तरह से उसको टैम्प्ट करता है बिकॉज वो तो स्टीलिंग में भी माहिर है. तो मॉर्निंग में जब वो, रात को तो सो जाता है बट मॉर्निंग में जब वो उठता है तो वो देखता है कि मौका अच्छा है. 30 क्रोनर्स अगर मुझे मिल जाता है तो इट्स अ बिग अमाउंट and I can spend my few days in a well manner. So early in the morning जब क्रॉफ्टर को तो जल्दी उठना होता है because he is a milkman. So वो जल्दी उठता है and he just उसके लिए भी नाश्ता बना के और दोनों एक दूसरे को गुड बाय कह के चले जाते हैं. लेकिन जो रैट ट्रैप सेलर है, पैडलर है, वो वापस रिटर्न होके आता है. उसकी विंडो को स्मैश करता है जहाँ पे वो पाउच रखा होता है, उसने कल उसको रात को दिखाया होता है, और उस अंदर हाथ डाल के उस पाउच से वो 30 क्रोनर्स निकाल के और चला जाता है. बिकॉज उसके कपड़े बहुत गंदे होते हैं रेड ट्रैप सेलर के. तो और उसकी जेब में 30 क्रोनर्स. अगर वो, अब सवाल ये उठता है कि वो 30 क्रोनर्स संभाल के कैसे रखें, क्योंकि ये अमाउंट उसके गेटअप के साथ मैच नहीं करता है. मतलब अगर कोई भी इतना अमाउंट उसके पास देखेगा और उसकी हालत देखेगा तो व्हाट पीपल विल से, चोरी किए होंगे इसने ज़रूर, क्योंकि इसके लेवल के तो नहीं लग रहे, इतने पैसे इसके पास कहाँ से आएंगे. तो इसीलिए वो अवॉइड करता है कि मैं हाईवे से यहाँ पे से नहीं निकलूँगा. जंगल में हूँ तो एक काम ये करता हूँ कि जंगल से कोई रास्ता ढूंढता हूँ और यहीं से बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ कि यहीं से मुझे कहीं रास्ता मिल जाएगा. क्योंकि अगर हाईवे से गया तो लोगों ने या पुलिस ने मुझे पकड़ लिया तो फिर जेल में चला जाऊँगा मैं. तो वो उस जंगल में राउंड 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 घूमता रहता है, लेकिन उसे वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं निकलता है. अर्ली मॉर्निंग में निकला होता है वो, इवनिंग हो जाता है, डार्क इवनिंग हो जाता है, विंटर्स की इवनिंग होती है, अंधेरा होने लग जाता है और बहुत ज़्यादा घना जंगल होता है. और उसे ऐसी फीलिंग आती है कि मैं घूम घूम के फिर एक ही जगह पे वापस आ जा रहा हूँ, बाहर जाने का वे नहीं है. एंड फाइनली ही वाज शैटर्ड डाउन, बैठ जाता है
अपने हाथों को इस तरह से फेस को अपने हाथों में रख लेता है एंड ही थॉट माई एंड इज़ नियर नाउ, अब सब फिनिश होने वाला है मेरे लाइफ में, आई एम अबाउट टू डाई। तो इसके बाद क्या होता है, पिक्चर अभी बाकी है, कहानी में भी ब्रेक लेंगे बिकॉज द टाइम इज़ अप। बाकी की स्टोरी नरेशन आई कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। होप सो यू वुड हैव अंडरस्टैंड। That's all for today. Stay safe, stay home. Bye bye.